دے آدھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جی لگا کر کے درود پاک پڑھنا. اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وقت کافی ہو چکا ہے. 25 سے 30 منٹ انشاءاللہ میری تقریر ہوگی، پھر اس کے بعد سلام پڑھ لیا جائے گا. اس سے پہلے نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت ہے، سماعت کر لیں. شاعر بڑے اچھے انداز میں لکھتے ہیں: رخ پہ ظلمت کے رنگ ملال آ گیا، رخ پہ ظلمت کے رنگ ملال آ گیا، رخ پہ ظلمت کے رنگ ملال آ گیا، ہاں ملال آ گیا. جگ میں جب آمینہ بھی کلال آ گیا، جگ میں جب آمینہ بھی کلال آ گیا. ناز کر اے حلیمہ مقدر پہ تو، ناز کر اے حلیمہ مقدر پہ تو، ناز کر اے حلیمہ مقدر پہ تو، ہاں مقدر پہ تو. تیری بوسیدہ گدڑی میں لال آ گیا، تیری بوسیدہ گدڑی میں لال آ گیا. کتنے یوسف جمالوں کے سر جھک گئے، کتنے یوسف جمالوں کے سر جھک گئے، ہاں سر جھک گئے. حشر میں جب نبی کا بلال آ گیا، حشر میں جب نبی کا بلال آ گیا. رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، آ رہے مصطفیٰ. اپنی امت کا جس دم خیال آ گیا، اپنی امت کا جس دم خیال آ گیا. رخ پہ ظلمت کے رنگ ملال آ گیا. جی لگا کر کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ محفل میلاد پاک برکتیں حاصل کرنے کے لیے، رحمتیں حاصل کرنے کے لیے ایک بچی کے شادی کے موقع پر منعقد کیا گیا. ہاں ختنہ بچے کے پیدائش ختنہ ہے، میں سمجھ رہا تھا شادی ہے. بچے کے ختنہ کے موقع پر ماشاءاللہ، بچے کے ختنہ کے موقع پر اس محفل میلاد پاک کا اہتمام کیا گیا. اللہ تعالیٰ اس محفل میلاد پاک کو قبول و مقبول فرمائے. دیکھیے بڑی بابرکت محفل ہے. ایسی محفلیں ہمیشہ نہیں ملتی ہیں، کبھی کبھی ملتی ہیں. کبھی کبھی ایسی محفلوں میں آنے کا موقع میسر ہوتا ہے. تو ایسی پاک اور بابرکت محفلوں کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں. اور یہ محفل میلاد پاک ایک دینی مجلس ہے، خالص دینی مجلس ہے، اور اس میں دین سیکھا اور سکھایا جاتا ہے. اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من احیائها، علم دین کا سیکھنا رات کے کچھ حصے میں، علم دین کا سیکھنا رات کے کچھ حصے میں پوری رات نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ بے شک ہم اور آپ دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور پیغمبر فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، سب سے بہتر وہ ہے جو دین سیکھے اور سکھائے۔ تو ہم اور آپ دین سیکھ رہے ہیں، دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ مذہب اسلام پوری دنیا میں امن، شانتی، پیار، محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام دہشت گردی کا خاتمہ کرتا ہے، اسلام آتنک کو مٹاتا ہے، اسلام بے حیائی کو ختم کرتا ہے، اسلام شراب نوشی پہ پابندی لگاتا ہے، اسلام جوا کھیلنے پہ پابندی لگاتا ہے، اسلام برائیوں سے دور رہنے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ماں باپ کی خدمت کا سبق پڑھاتا ہے، اسلام لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کے قانون جیسا پوری دنیا میں کوئی قانون نہیں ملے گا، جس کی اچھائی اور خوبی کا عالم یہ ہے، جس کی بہتری کا عالم یہ ہے، جس کے پیار اور محبت کا عالم یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اے لوگوں، آپ کے پیغمبر نے، آپ کے رسول نے، آپ کے آقا نے فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، یعنی یہ کہ مسلمان اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ الحمدللہ ہم اس مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں جس کے قانون کو دیکھا جائے تو سارے قانونوں سے الگ نظر آتا ہے، جس کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو سب کے تعلیمات سے اس کی تعلیمات الگ تھلگ ہیں، سب کی خوبیاں ایک طرف، اسلام کی خوبی ایک طرف، ساری خوبیوں پر اسلام کی ایک خوبی سب پر بھاری نظر آتی ہے۔ تو اسلام وہ پیارا مذہب ہے جسے ہم اور آپ مانتے ہیں، جس کی تعلیم کے تلے ہم اور آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں، جس کے اسباق کو ہم پڑھتے ہیں، اور جس کی تعلیم ہمارا ہر بچہ لیتا ہوا نظر آتا ہے، اور ضرورت بھی ہے۔ اس وقت جو کیفیت ہے ہمارے ہندوستان کی، جو حالات ہیں ہمارے ہندوستان کی، کچھ کہا نہیں جا سکتا کب کیا ہو جائے گا، کب کون سا رخ لے لے گا، کب کہاں کیا ہو جائے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ آج صرف نام کے حاکم رہ گئے ہیں، کام کے حاکم نہیں رہ گئے۔ آج صرف نام کے نیتا رہ گئے ہیں، کام کے نیتا نہیں رہ گئے۔ آج تو اپنی کرسی بچانے کے لوگ جنگ کرا دیا کرتے ہیں، لڑائی کر دیا کرتے ہیں، مار پیٹ کرا دیا کرتے ہیں، کہیں دنگے کرا دیے جا رہے ہیں، کہیں مسجدیں جلا دی جا رہی ہیں، کہیں مسلمانوں کو ایک طرفہ کاٹ دیا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ نے فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ میں دیکھا ہوگا تری پورا میں کیا ہو رہا ہے۔ 200 سے زیادہ مسجدوں کو جلا دیا گیا، نہ جانے کتنے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، اور حکومت اندھی بڑی ہوئی ہے، حکومت مر رہی ہے، نام منسک ہو گئی ہے، حکومت کے پاس کوئی پاور نہیں کہ ان ہنسک کو اور ان ہنسک وادیوں کو تحقیق کرے، ان کو مارے اور ان کو قید کرے۔ کھلے عام گنڈے گھوم رہے ہیں ہاتھ میں تلوار لے کر، بندوق لے کر کے، لیکن حکومت بالکل مردہ ہو چکی ہے، اس کو کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ آج کیا ہندوستان کا مسلمان ہندوستانی نہیں ہے؟ کیا یہاں کا رہنے والا ہندوستانی نہیں ہے؟ ہندوستان کا پاٹ اور ہندوستان کی محبت مسلمانوں سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس ہندوستان کے لیے مسلمانوں نے اپنی گردنیں کٹائی، اپنی اولادوں کی قربانیاں دی ہیں، اپنے بچوں کی گردنیں کٹائی ہیں، لیکن آج سوتیلا ویوہار کیا جاتا ہے، آج پیٹھ پیچھے طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، آج انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، جہاں پاؤ وہاں مار دو۔ کہیں کہیں دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان اگر کوئی بیاپاری گاؤں میں گھوم رہا ہے تو اس سے پروف مانگا جا رہا ہے، اس کا آئی ڈی مانگا جا رہا ہے، مسلمان ہے تو گاؤں سے بھگا دیا جا رہا ہے۔ کیا یہی ہندوستان کا سنویدھان ہے؟ کیا ہندوستانی تعلیم یہی ہے؟ اجی اسلام کو پڑھو، اسلام کو سمجھو۔ اسلام محبت کا پاٹ پڑھاتا ہے، اسلام پیار کا پاٹ پڑھاتا ہے، اسلام محبت اور پیار، الفت، انسیت، ایک دوسرے کے
दुख दर्द में, एक दूसरे के खुशी गम में शरीक रहने का पाठ पढ़ाता है। तो आप हम और आप बैठे एक मकसद लेकर के, दीन सीखना है, सिखाना है। आप देखें हमारे मजहब इस्लाम के अंदर नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत है खतना करना। ये खतना किसकी सुन्नत है? तो हम जब किताब उठाते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तो कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। जब आजमाया इब्राहिम के रब ने उनको कुछ चीजों से, तो हजरत इब्राहिम ने उसे पूरा कर दिखाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को 10 काम का हुक्म दिया था, जिसमें ये भी एक हुक्म था कि अपना खतना करो। उस वक्त हजरत इब्राहिम की उम्र 80 से तजावुज कर चुकी थी। उस वक्त अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपना खतना करो। ये खतना हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। हजरत इब्राहिम की प्यारी प्यारी सुन्नत है खतना करना। इब्राहिम की प्यारी प्यारी सुन्नत है खतना करना। तो खतना करना नबी की सुन्नत है, एक प्यारे खलील की सुन्नत है। हम मोहब्बत दीन में, मोहब्बत नबी में, मोहब्बत इस्लाम में अपने बच्चों का खतना करते हैं। और अगर साइंसी नज़रिया से देखा जाए, साइंसी एतबार से देखा जाए, तो मशहूर और तजर्बाकार बेहतरीन डॉक्टर जहांगीर साहब किबला भी हैं। आप उनसे तहकीक कीजिएगा कि खतने में फ़ायदा क्या, तो उसके फ़ायदे आपको बताएंगे। खतने में कई फ़ायदे हैं। एक तो बदन का, इंसानी बदन जो है वो खतने के ज़रिए खिल जाता है, सुकून पाता है। खतने के ज़रिए बदन में तरह तरह की ताकतें मौजूद होती हैं। खतने के ज़रिए अंदरूनी ताकतें पैदा होती हैं। खतने के ज़रिए और भी बहुत से फ़ायदे हैं जो हम सब यहाँ एक तरफ से गिना नहीं सकते। तो खतने के बहुत सारे फ़वाइद मौजूद हैं, बहुत सारी हिकमतें, बहुत सारे असरार उसमें मौजूद हैं। देखिए, हमें और आपको मोहब्बत की ज़रूरत है। नबी की मोहब्बत में, नबी की वफादारी में अपनी ज़िंदगी गुजारें। एक मोहब्बत की मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ और मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। मोहब्बत किस तरह हम और आप करें। एक वो ज़माना था, नबी इशारा कर देते तो सहाबा आग के दरिया में कूद जाते। नबी इशारा करते पहाड़ों से टकरा जाते। नबी इशारा करते तो अपनी जान माल की परवाह नहीं करते। आज हम मोहब्बत के दावे तो करते हैं लेकिन खोटे नजर आते हैं। मोहब्बत के दावे तो करते हैं लेकिन खाली नजर आते हैं। मोहब्बत के दावे तो करते हैं लेकिन हमारे अंदर वो बातें नहीं हैं जो हमें मोहब्बत का पाठ पढ़ाया गया था। जो सहाबा ने मोहब्बत करके दिखाया, वो मोहब्बत हमारे अंदर नहीं है। वो प्यार, वो लगाव, वो अकीदत हमारे अंदर नहीं है जो सहाबा ने करके दिखाया, जो सहाबा ने किया है। अल्लाहु अकबर। आप गौर करें, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी प्यारी बात याद आ गई। आप गौर करें, उस सहाबी का नाम है हजरत ज़ैद बिन सकन। सहाबी का नाम है ज़ैद बिन सकन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जंग हो रही है जिसे हम और आप जंग उहद के नाम से जानते हैं। वो जंग हो रही है, बड़ी घमसान की जंग हो रही है। उसी जंग में एक सहाबी रसूल हैं जो ज़ैद बिन सकन हैं। इतना जख्म खाते हैं, इतने तलवारों की बारिश होती है, इतने तीर बरसाए जाते हैं, इतने वार उनके बदन पे होते हैं कि जख्मों से चूर चूर होकर जमीन पे गिर गए। हाथ पैर जवाब दे चुके हैं, जमीन पे रेंग रहे हैं। पैरों में ताकत नहीं कि खड़ा हो सके, हाथों में ताकत नहीं कि उठा सके, बदन में ताकत नहीं कि खड़े हो सकते। हजरत ज़ैद बिन साकिब जख्मों से चूर चूर होकर के जमीन पर पड़े हैं। हालत ये है, बदन से खून निकल रहा है, तड़प रहे हैं, बिन जल के मछली की तरह, बिन जल के मछली की तरह, बिन पानी के मछली की तरह जमीन पे तड़प रहे हैं और सर उठा उठा के किसी को तलाश रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं। निगाहें चारों तरफ घूम रही है। एक सहाबी आते हैं, कहते हैं, ऐ ज़ैद क्या हाल है तुम्हारा? तुम तो जख्मों से चूर चूर हो, लेकिन तलाश किसको कर रहे हो? किसकी जुस्तजू में हो? किसकी आरज़ू में हो? बताओ, तुम किसकी याद में गर्क हो? किसकी मोहब्बत में तड़प रहे हो? अल्लाह अल्लाह। हजरत ज़ैद बिन सकन कहते हैं, ए मेरे भाई, मैं आपको क्या बताऊं, मैं इस वक्त किस कैफियत में हूं, किस हालत में हूं, क्या मेरे ऊपर गुजर रहा है, मैं किस कैफियत में चल रहा
हूँ, मैं आपको क्या बताऊं। कहा हुआ क्या? कहा देखो मैं जख्मों से चूर चूर हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे बदन से मेरी रूह निकल जाएगी, लेकिन मैं तड़प रहा हूँ इसलिए, मैं परेशान हूँ इसलिए। कहा हुआ क्या? क्या परेशानी आ गई है? क्या मुसीबत आ गई है? क्या तुम्हें दिक्कत हो गई है? क्या परेशानी हो गई है? कहा सुनो परेशानी ये है, दिक्कत ये है, परेशानी ये है, आज हम जो कैफियत में डूब जूझ रहे हैं, जो मेरे हाथ पैर जख्मों से चूर चूर है, मैं बिल्कुल कमजोर हो चुका हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरे बदन में तरह तरह के जख्म है, कहीं तीर है, कहीं तलवार है, कहीं नेज़े हैं, कहीं भाले हैं, तरह तरह के जख्म मेरे ऊपर लगे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि मेरी रूह मेरी बदन से निकल जाएगी। मैं अपने आका को तलाश रहा हूँ, निगाहें घुमा घुमा के देख रहा हूँ, कहीं नबी का दीदार हो जाए, कहीं नबी का दीदार हो जाए। कहा पूछने वाले ने ऐसा क्यों? कहा पूछने वाले ने ऐसी ख्वाहिश क्यों है? कहा सुनो सुनो, मेरा जाने ईमान तो मेरा नबी है, मेरा सब कुछ मेरा नबी है। ऐ मेरे यारो, ऐ मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे और आपके नबी की बात है, तेरे मेरे यार की बात है, प्यारे मुस्तफा की बात है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानगी की बात है, मोहब्बत की बात है, उल्फत रसूल की बात है। वो सहाबी अर्ज करते हैं, ऐ मेरे प्यारे दोस्त, मैं तड़प रहा हूँ, कहीं ऐसा न हो मेरा इंतकाल हो जाए, नबी की जियारत न हो पाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मैं तड़प रहा हूँ, कहीं ऐसा न हो मेरे बदन से रूह निकल जाए, नबी का दीदार न हो पाए। तो मैं सिर्फ इसलिए तड़प रहा हूँ, काश नबी का दीदार हो जाता, काश नबी के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत कर लेता, आखिरी वक्त नबी के चेहरे को देख लेता, आखिरी वक्त नबी का दीदार कर लेता, उसके बाद मेरी रूह निकल जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी आलम में थे, तब देखेगा नबी दूर खड़े हैं और नबी अपने उस सहाबी को दूर से देख रहे हैं कि मेरा सहाबी तड़प रहा है। अपने आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की बात क्या करें, बेखबर जो हो गुलामों से वो आका क्या है। बंदा मिट जाए ना आका पे, वो आका क्या है, और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। आका समझ गए कि मेरा दीवाना क्या चाहता है, मेरे दीवाने की ख्वाहिश क्या है, मेरे दीवाने की आरज़ू क्या है। मेरे आका उधर से जल्दी जल्दी कदम उठाते हैं, अपने दीवाने ज़ैद बिन सकन के पास आते हैं। कहा मेरे दीवाने क्या हाल है तुम्हारा, ऐ ज़ैद क्या हाल है तुम्हारा। अब तो उनकी आंखों से सावन भादों की तरह बरसात हो रही आंसू की, तड़प तड़प के रो रहे हैं, आंसू बहा रहे, कहते या रसूल अल्लाह, मैं तो ये समझ रहा था कि बगैर आपके दीदार का मेरा इंतकाल हो जाएगा, बगैर आपको देखे मेरी रूह निकल जाएगी, बगैर आपके चेहरे का दीदार किए मैं दुनिया से चला जाऊंगा। लेकिन अल्लाह का करम है कि आप आ गए, आपके चेहरे की दीदार हो गया, आपके चेहरे की जियारत हो गई है। या रसूलल्लाह, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश थी। कहा क्या ख्वाहिश है? कहा मेरी तमन्ना ये है, मेरी आरज़ू ये है कि या रसूलल्लाह आपके कदम पे मेरा सर हो और उस वक्त मेरे बदन से रूह निकल जाए, उस वक्त मेरे बदन से रूह निकल जाए, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मेरे आका और आगे बढ़े, कहा मेरे दीवाने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले, मेरे दीवाने अपनी तड़प पूरी कर ले, अपनी आरज़ू पूरी कर ले, अपनी तमन्ना पूरी कर ले, अपना शौक पूरा कर ले। आका आगे बढ़े हैं, नबी के कदम है, हजरत ज़ैद ने अपना सर, अपना चेहरा नबी के कदम पे रख दिया, नबी के कदम पे रख दिया। रखना था कि हजरत ज़ैद के बदन से रूह निकल गई, बदन से रूह निकल गई। नबी के कदम पे, नबी के कदम पे सहाबी का सर है, नबी के कदम पे सहाबी का चेहरा है, और ऐसे आलम में रूह निकल रही है। अल्लाह अल्लाह, गौर करें, नबी के कदमों पे सर और उस आलम में रूह निकले। शायर कहते हैं या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों पे सर हो और तारे जिंदगी टूटे, तेरे कदमों पे सर हो और तारे जिंदगी टूटे, यही मरने का मकसद है, यही जीने का हासिल है, यही मरने का मकसद है, यही जीने का हासिल है। और रियाजत नाम है या रसूल अल्लाह, रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का। तसव्वुर में तेरे रहना मोहब्बत इसको कहते हैं, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। सहाबी रसूल नबी के कदम पे अपना सर रखकर दम तोड़ते हैं, दुनिया को पैगाम देते हैं, ए दुनिया वालों सुन लो और समझ लो, तुम्हारी
मोहब्बत नहीं है तो सब कुछ बेकार है, सब बेशक सुभान अल्लाह बेशक नबी की मोहब्बत असल है, नबी की मोहब्बत असले ईमान है, असले आमान है, जाने कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हम और आप नबी से वो मोहब्बत करें, प्यार करें। और हकीकत में मेरे नबी ने मोहब्बत ही का पाठ पढ़ाया है, मेरे नबी ने उल्फत ही का पाठ पढ़ाया है, मेरे नबी ने पाठ पढ़ाया है तो लोगों को भाईचारगी का पाठ पढ़ाया है, प्यार का पाठ पढ़ाया है, उल्फत का पाठ पढ़ाया है। आखिरी बात मैं आपको अर्ज करते चलूं कि हमें और आपको नबी से किस तरह मोहब्बत करनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी में एक इनकलाब होना चाहिए, हमारे रहन सहन में इस्लामी तहजीब होनी चाहिए, हमारा खाना इस्लामी तरीके से हो, हमारा पीना इस्लामी तरीके से हो, हमारा चलना इस्लामी तरीके से हो, हमारा उठना इस्लामी तरीके से हो, हमारा पहनना इस्लामी तरीके से हो, हमारी शादियाँ इस्लामी तरीके से हो, हमारे तकरीबात इस्लामी तरीके से हो, हमारे प्रोग्राम इस्लामी तरीके से हो। हम सब कुछ इस्लामी तरीके पे करें, इस्लामी तहजीब व तमद्दुन में करें। हम मुसलमान हैं, मुसलमान बनकर रहें, हम ईमान वाले बनकर रहें, हम नबी के दीवाने हैं, दीवाने बनकर के रहें, हम उश्शाक के रसूल हैं, हम सही तरीके से इश्क वाले होकर के रहें। यही हम आपको पैगाम देते हुए नजर आ रहे हैं, यही हमारा पैगाम है, यही हमारी सोच है, यही हमारे ख्यालात हैं कि जब हम दीवाने हैं तो नबी के दीवाने सही तरीके से बन के रहें। हाँ, जब हम मतवाले हैं तो मतवाले बन करके रहें। जब हमारे और आपके आका की बात आए तो हमारा चेहरा खिल जाना चाहिए कि नबियों के इमाम की बात हो रही है, प्यारे पैगंबर की बात हो रही है, प्यारे रसूल की बात हो रही है, प्यारे आका की बात हो रही है। ऐ मुसलमानों, वो पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, मोहब्बत की बात है, उल्फत की बात है, प्यार की बात है। नबी से किस तरह हमें और आपको प्यार और मोहब्बत रखने की जरूरत है। आज हमारी जिंदगियों में एक इनकलाब बर्पा करने की जरूरत है। हम अपनी जिंदगी से गुनाहों को निकाल करके फेंकें, हम बेतवज्जुही को निकाल करके फेंकें, हम अपने अंदर बिगड़ते हुए किरदार पे रोक लगाएं, बिगड़ते हुए माशरे पे रोक लगाएं। आज हमें और आपको संभलने की जरूरत है। नहीं संभलेंगे तो हमारा बड़ा घाटा हो जाएगा, नहीं संभलेंगे तो हमारा और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमें और आपको समझने और सोचने की जरूरत है। हम अपने समाज से गंदगियों को निकाल करके फेंकें, अपने समाज से बुराइयों बेहयाइयों को निकाल कर फेंकें। ये आपका मजहब आपको पाठ पढ़ाता है, आपका मजहब आपको तालीम देता है। हम समाज को बुराइयों से पाक और साफ कर दें। आइए मैं एक बात बताता हूँ, उसके बाद सलाम पढ़ लिया जाएगा, क्योंकि नूर मोहम्मद साहब ने कहा कि बस आधा घंटा बोलिएगा। बस एक बात और बताते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह सलाम पढ़ लिया जाएगा। ज़्यादा वक्त लेना भी मेरी आदत नहीं, जो कहा जाता है उस पर इंशाल्लाह अमल करने की कोशिश करता हूँ। मैं ज़बरदस्ती किसी से पढ़वाता नहीं, ज़बरदस्ती किसी को बैठाता हूँ। बस लोगों की तमन्ना जितनी रहती है बस उतने ही मैं अर्ज करता हूँ, उतना ही मैं बयान करता हूँ। आखिरी बात ये समझ लें, अब जितना टाइम लग जाए, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, जितना लग जाए। आखिरी बात, घबराइएगा नहीं, घबरा नहीं रहे ना, बस अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मालूम है लोग खाना भी खाना रहता है, दूर दराज जाना भी रहता है। बस अब जितना टाइम लग जाए इस बात को बताने में, बस उतने ही देर में आपका टाइम लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। जितना टाइम लग जाए बस एक बार जी लगा करके दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व तबीब कुलूबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्ली सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सहाबी रसूल हैं कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। हजरत अबू बकर सिद्दीक, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अबू बकर, तुम सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? तुम्हारी चाहत क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश 3 चीजों की रहती है। क्या रहती है? 3 चीजों की मेरी ख्वाहिश है, 3 चीजें मुझे ज्यादा पसंद है। आका फरमाते हो 3 चीजें क्या हैं? वो 3 चीजें तुम क्या पसंद करते हो? अल्लाह अल्लाह, गौर करें। आज का दौर होता, हम पसंद करते हैं हमारा घर खूब बढ़िया हो जाए, हम पसंद करते हैं हमारे पास खूब अच्छी गाड़ी हो जाए 20-25 लाख की, हम पसंद करते हैं हमारा घर महल जैसा बन जाए, हम पसंद करते हैं हमारे पास खूब ज़्यादा दौलत हो, हम पसंद करते हैं हमारी ज़िंदगी ऐशो इशरत में गुजरे। लेकिन सहाबी रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या फरमाते हैं? अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी 3 ख्वाहिशें हैं, 3 चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। कहा आका ने वो क्या है? अल्लाह अल्लाह, गौर कर, बड़ी प्यारी बात है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह, पहली चीज ये है, मैं ये पसंद करता हूं
फरमाते हैं अन नजरो इलैका, ए मेरे आका मेरी पहली ख्वाहिश है कि मैं हमेशा आपको देखता रहूं। मेरी यही ख्वाहिश है, मैं आपको देखता रहूं, हर वक्त आपको देखता रहूं, हर वक्त आपके चेहरे की ज़ियारत करता हूं। ये मेरी पहली ख्वाहिश है, ये मेरी तमन्ना रहती है कि मैं हर वक्त आपको देखता रहूं। आका फरमाते हैं दूसरी चीज अल जुलूसु इंदका या रसूल अल्लाह, ये मेरे आका मैं चाहता हूं कि हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी, हर वक्त मैं आपके पास बैठे रहूं। अल्लाह, पहली ख्वाहिश ये है या रसूल आपका चेहरा देखता हूं। दूसरी ख्वाहिश ये है कि हर वक्त मैं आपके पास बैठे रहूं। और तीसरी ख्वाहिश आका फरमाते हैं, तीसरी ख्वाहिश क्या है? कहा या रसूलल्लाह तीसरी ख्वाहिश बता दो। हाँ बता दीजिए, तीसरी ख्वाहिश क्या है? कहते या रसूल अल्लाह अल अनफाकु अलैका, ए मेरे आका मैं चाहता हूँ मैं अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, मैं सब कुछ आप पर निछावर करता रहूं। बस ये तीन चीजें मुझे पसंद है, आपको देखना, आपके पास बैठना और आप पर सब कुछ निछावर करना। हमें भी ये अकीदा, हमें भी ये जिंदगी, हमें भी ये नेमतें अल्लाह ने दी है, सब कुछ अल्लाह ने दिया है, हमारे अंदर भी यही होनी चाहिए। हम नबी की ज़ियारत के लिए तड़पे, हम नबी के पास रहने के लिए तड़पे, हम नबी पर सब कुछ खर्च करने के लिए तड़पते रहें। और यही मोहब्बत रसूल का तकाजा है। और इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसे हमेशा देखने की तमन्ना करता है, नहीं करता है? जिससे ज्यादा प्यार होता है उसे देखने की तमन्ना करता है, जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है उसी के पास रहना चाहता है, जिससे ज्यादा मोहब्बत करता है उससे ज्यादा खिलाने पिलाने, उसे सब कुछ देने की तमन्ना करता है। तो जो